Good morning, students. Today we will continue the first lesson of class 5th English subject, as we have already discussed before earlier parts, and today we will continue from here, the third page of this lesson. So we will start reading first and then I will explain in Hindi. So let's get started. As Robin grew older, he developed the habit of stealing. He stole from the stores, he stole from his friends, he even stole from his mother's purse. There came a day when he was caught in the act of stealing a lady's purse while she was standing at a bus stand waiting for a bus. He tried hard to escape. He ran down the crowded road between buses and cars. He knocked people and fruit carts down. The police kept chasing him, and finally, in an attempt to escape, after having hurt many people, he killed a traffic policeman who was trying to stop him from getting away. In no time, a crowd gathered at the scene. The people surrounded him, flogged him, and then handed him over to the police. He had also arrived on the scene. A policeman handcuffed him and took him to a cell where he awaited his trial. So let's understand it in Hindi. As Robin grew older, he developed the habit of stealing. Robin जैसे जैसे ही बड़ा हुआ, उसकी चोरी करने की आदत जो है वो और भी बढ़ गई. He stole from the stores, he stole from his friends. वो कभी कभी दुकान से भी चोरी कर लेता था और अपने फ्रेंड्स के पास से भी चोरी कर लेता था. He even stole from his mother's purse, और अपने माता जी के पर्स से भी कभी पैसे चुरा लिया करता था वो. There came a day when he was caught in the act of stealing a lady's purse while she was standing at a bus stand waiting for a bus. एक दिन क्या होता है कि वो चोरी के जुर्म में पकड़ा जाता है जब एक महिला बस स्टैंड पे बस के लिए इंतज़ार कर रही थी और रॉबिन जो है उसकी पर्स चुराने की कोशिश करता है. He tried hard to escape, और वो बचने की बहुत कोशिश करता है. He ran down the crowded road between buses and cars, और भीड़ भरी सड़क पे वो कैसे भी बचकर भागने का प्रयास करता रहा, भागता रहा. He knocked people and fruit carts down. वो लोगों को धक्के मारकर आगे बढ़ता, लोगों को गिराते हुए, और फल के जो ठेले होते हैं उनको भी नीचे गिराते हुए वो बच के भागने की बहुत कोशिश कर रहा था. The police kept chasing him, and finally, in an attempt to escape, पुलिस जो है फिर भी उसके पीछे पड़ी रही, उसको पीछा करती रही, और अंत में बचने के मार्ग पर उसने क्या गलती कर दी. ही आफ्टर हैविंग हर्ट मैनी पीपल, काफ़ी लोगों को चोट पहुंचाते हुए, ही किल्ड अ ट्रैफिक पुलिसमैन, उसने एक ट्रैफिक पुलिस वाले की हत्या कर दी भागने के समय. हु वॉज ट्राइंग टू स्टॉप हिम फ्रॉम गेटिंग अवे, वो ट्रैफिक पुलिस मैन जो था वो रॉबिन को भागने से रोक रहा था. तो इस बचने के चक्कर में उसने उस ट्रैफिक पुलिस मैन की हत्या कर दी. इन नो टाइम अ क्राउड गैदर्ड एट द सीन, और देखते ही देखते पूरी भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हो गई. लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया. The people surrounded him, flogged him, and then handed him over to the police. लोगों ने चारों तरफ से घेर कर उसे पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया. Who had also arrived on the scene. A policeman handcuffed him and took him to a cell where he awaited his trial. और पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है हथकड़ी लगाते हुए और उसे जेल में बंद कर देती है जहाँ पे वो मुकदमे के लिए इंतज़ार कर रहा था. In the next page, everyone in Robin's neighborhood knew Robin well. He had attended the same school as the children of his neighborhood. While the other children had all graduated and were all doing well, Robin had got into the wrong kind of company and had gone to jail many times. He had a criminal record, but this was the first time he had committed murder, and everyone knew that this time he would not be able to get away with it.
Robin's mother tried her best to save Robin, but on the day of the final hearing, the courtroom was full. Robin's accomplice, his neighbors, the relatives of the murdered policeman, and many eyewitnesses made up the crowd. The judge beat his mallet on the table before him and said one word, guilty. Robin was found guilty of theft and murder. Therefore, he was led away to be executed. The silence in the courtroom was broken by Robin's mother's sobs. His mother followed behind the crowds, sobbing and crying as she saw her only son, who she loved, moving further and further away from her towards his death. In the last paragraph, her son, on seeing her, called her close to him and bent towards her. The scene was very touching. Everyone waited, wondering what the boy was going to say to his mother. He probably wants to say a few last words of farewell, said one of the witnesses to those around. But instead of whispering a tearful goodbye, Robin told his mother to come a little closer. As she came closer, hoping she would be able to plant a farewell kiss on his cheek, he spat in her face. Then he said, "If you had beaten me when I first brought the chocolate home and made me return it to my friend from whom I had stolen it, I would not have come to this. You are the cause of my disgrace and death." Now I am going to explain it in Hindi. So आइए अब हिंदी में समझ लेते हैं इसे. Everyone Robin's neighborhood knew Robin well. रॉबिन्स के जो पड़ोसी थे वो रॉबिन को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे. He had attended the same school as the children of his neighborhood. और वो उसी स्कूल में पढ़ता था जिस स्कूल में पड़ोस के सारे बच्चे पढ़ते थे. While the other children had all graduated and were all doing well, Robin had got into the wrong kind of company and had gone to jail many times. उसके साथ के जितने भी बच्चे थे वो सब कुछ ग्रेजुएट करते हुए बेहतर कर रहे थे, लेकिन रॉबिन जो है गलत संगत में पड़ के गलत इंसान बन गया और वो कई बार जेल जा चुका था. He had a criminal record, but this was the first time he had committed murder, and everyone knew that this time he would not be able to get away. जैसा कि रॉबिन कई बार जेल जा चुका था, लेकिन इस बार जो है उसने एक मर्डर किया था जो कि एक बहुत ही संगीन जुर्म होता है, और सभी लोग मान चुके थे कि इस बार जो है रॉबिन बच के नहीं निकल पाएगा. Robin's mother tried her best to save Robin, but on the day of the final hearing, रॉबिन की मम्मी ने, उनकी माताजी ने रॉबिन को बचाने का भरपूर प्रयास किया. जितना हो सका उनसे उन्होंने रॉबिन को बचाने की कोशिश की. लेकिन उस दिन जब अदालत में सुनवाई होने वाली थी, आखिरी सुनवाई होने वाली थी, उस दिन क्या होता है, द कोर्ट रूम वॉज फुल. अदालत के अंदर का जो कमरा था जहाँ जज बैठते हैं वो पूरी तरीके से भरा हुआ था. Robin's accomplice, his neighbors, the relatives of the murdered policeman and many eyewitnesses made up the crowd. और उस भीड़ में कौन कौन लोग थे? रॉबिन्स के accomplice मतलब ऐसे लोग जो जुर्म में सहायता किसी न किसी तरीके से सहायक थे, पड़ोसी, संबंधी और रिलेटिव्स ऑफ द मर्डर्ड मतलब जिसकी हत्या हुई थी उसके संबंधी वो वहाँ पहुँचे हुए थे. पुलिसमैन एंड मैनी आई विटनेसेस, पुलिस भी थी वहाँ पे और बहुत सारे गवाह भी वहाँ मौजूद थे. द जज बीट हिज मैलेट, जज ने अपनी हथौड़ी पीटी टेबल पे, और सारे प्रोसेस होने के बाद अदालत में मुकदमे की सारे गवाहों को सुनने के बाद जज ने कहा गिल्टी, यानी गिल्टी का मतलब होता है दोषी.
जज ने रॉबिन को दोषी करार दिया। रॉबिन वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट एंड मर्डर। रॉबिन को चोरी और हत्या के जुर्म में दोषी करार दिया गया और उसे देयरफॉर ही वॉज लेड अवे टू बी एग्जीक्यूटेड, और उसे मौत की सज़ा सुनाई गई। द साइलेंस इन द कोर्ट रूम वॉज ब्रोकन बाई रॉबिन्स मदर्स सॉब्स। जब जज ने अपना फैसला सुनाया उस समय कोर्ट में पूरी तरीके से सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा टूट जाता है रॉबिन के मदर की रोने की आवाज़ से। रॉबिन की मदर जो है वो रोने लगती है, सिसकने लगती है। हिज मदर फॉलोड बिहाइंड द क्राउड sobbing and crying as she saw her only son, who she loved, moving further and further away from her towards his death. जब रॉबिन को सज़ा सुना दिए जाने के बाद जब कोर्ट से बाहर निकाला जा रहा था तो पूरी भीड़ के साथ साथ रॉबिन की मदर भी है उसके पीछे जा रही थी, रोते हुए सिसकते हुए अपने बच्चे को जाते हुए देखते वो रोई जा रही थी, जिसे वो बहुत प्यार करती थी और खुद से दूर जाते हुए देख रही थी उसके मृत्यु की तरफ। आखिरी सीन में क्या होता है? हर सन ऑन सीइंग हर कॉल्ड हर क्लोज टू हिम एंड बेंट टूवर्ड्स हर। जब रॉबिन ने अपने मदर को देखा तो उसने अपने मम्मी को करीब बुलाया और थोड़ा सा झुक गया। द सीन वॉज वेरी टचिंग। ये काफ़ी दिल को छू लेने वाले सीन था, काफ़ी दुखदाई दृश्य था ये। एवरी वन वेटेड वंडरिंग वॉट द बॉय वॉज गोइंग टू से टू हिज मदर्स। आसपास के सभी लोग यह देखकर सोच रहे थे कि रॉबिन अपने माँ को क्या कहने वाला है। ही प्रोबेबली वॉन्ट्स टू से अ फ्यू लास्ट वर्ड्स ऑफ फेयरवेल। शायद वो अपने माँ को जाने से पहले कुछ आखिरी शब्द कहना चाहता हो। सेड वन ऑफ द विटनेसेस टू दोज अराउंड। आपस में लोग, आसपास के लोग बात कर रहे थे। बट इंस्टेड ऑफ विस्परिंग अ टीयरफुल गुड बाय, लेकिन एक आखिरी गुड बाय कहने से बजाय रॉबिन टोल्ड हिज मदर टू कम अ लिटिल क्लोजर। रॉबिन अपने माँ को थोड़ा और करीब आने के लिए कहता है। एज शी केम क्लोजर होपिंग शी वुड बी एबल टू प्लांट अ फेयरवेल किस ऑन द चीक। जब वो और करीब आई इस आशा में कि शायद एक चुंबन दे वो अपने माता के गाल पे, रॉबिन ने क्या किया? ही स्पैट इन हर फेस। अपने माँ के चेहरे पर उसने थूक दिया। देन ही सेड, इफ़ यू हैड बीटन मी व्हेन आई वॉज फर्स्ट ब्रॉट दैट चॉकलेट होम एंड मेड मी रिटर्न इट टू माई फ्रेंड। उसके बाद रॉबिन ने अपनी माँ से कहा, थूकने के बाद अपनी माँ के चेहरे पे, कि अगर तुमने मुझे उसी दिन बीट मारा होता जब मैं अपने दोस्त का चॉकलेट चुरा कर घर लाया था और मुझे ये समझाती कि ये चॉकलेट तुम उसे जाकर वापस दे दो, तो आज आई वुड नॉट हैव कम टू दिस, तो आज मेरी ये दशा नहीं होती। यू आर द कॉज ऑफ माई डिस्ग्रेस एंड डेथ, और आप ही मेरे अपमान और मृत्यु की कारण है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप I am successful to make you understand this lesson. So at your home you try to learn this and read this lesson again and again.